college to represent the views of the students on matters of general concern to them. In the days ahead, we will focus on our future together. Our main focus is on to initiate, implement, and complete projects and activities which will be of help to the institute, the students, and the faculty and the administration as well. The board of trustees and the community to develop and provide opportunities for leadership and service in the local institutes and in the community to encourage personal growth of leaders through participation in district, state, and national meetings and organization to contribute the educational experiences of students by providing them with a positive involvement in the institution with widened areas of responsibilities and more direct participation in organizing and implementing activities to promote respect for law and order and general welfare of the institute and community, to promote an awareness of human relations, of power structure, and how effectively operates within them. These objectives are realistically approached through increasing avenues of cooperation among the administration, faculty, and students to provide a viable means for students' expression and an increasing amount of self-direction to improve understanding between and within groups through interaction and communication, to develop student potential and encourage to make well-informed, honest, interested, and active citizenship, to develop not only leadership abilities within the youth of today, but also leadership for the community, state, and nation of tomorrow. In this process, it is also the objective to develop awareness of good leadership qualities, hopefully for a more informed, concerned, and active citizenry of tomorrow. I have kept all these things as a goal or motto because I have spent much of time learning about this exceptional place. I had the pleasure of meeting and speaking with hundreds of people, warm, passionate, dedicated, hopeful, proud, imaginative, attentive, supportive, enthusiastic, and mission-focused people. I am walking in new direction and asking a lot of questions, learning about aspirations, what people are proudest of what, and they are anxious about the as we move forward together. More than anything, I am listening. There has been no shortage of opinions or ideas, and they are always voiced with a desire to make our institute better. Through this process, I have learned that for a relatively young university, we are immensely proud of our roots and humble beginnings. We are resilient, enduring, and growing through times of turmoil, threat, and challenge. And we can have an extraordinary capacity for renewal, reinventing ourselves, and learning in new hurricane-like forces that reshape our landscape. I also learned that we are driven by a deep commitment to reach new heights. We are in the process of refreshing our strategic plan leading to a sustainable future for the Institute. Faculty, staff, students, alumni, and community partners are part of this important process. From your batch also, we are gonna elect our class representatives. Election program will be scheduled in next few days by the authorities. Today, through I'll share what I have come to see as our greatest aspirations. Defining visions for future, we at Sheila Raheja aspire to be the excellent, relevant, the innovative, and the institute that contributes to the betterment of society. We have much to be proud of in our academic programs and student outcomes. Our faculty are respected scholars and leaders in their disciplines, and our student outcomes are excellent. We are committed to staying focused on academic excellence. To the faculty, staff, administration, and fellow students, I would like to thank you for today. Now, I would like to call Pooja for the next procedure. Thank you so much, Soham. So we know that you guys are waiting for some dose of entertainment now. So are we all excited for some power pack performance? So I hand over the platform to Rajat for some wonderful performance. Over to you, Rajat. Thank you so much, Nikhil. Hello. Yes, Rajat, you're audible. आप बताओ. Nikhil, is music is audible? Your voice is audible, Rajat. Music is not. Hmm. Nikhil? Hello, Nikhil, is music is audible now? No, no, Rajat, no music sound.
Hello. Shining in the sailing sun like a pole upon the ocean. Come and feel me, oh hear me. वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के हाँ सपने संजोता था. पहले भी धड़कन ये धुन कोई गाती थी, पर अब जो होता है वो पहले न होता था. तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ. जब से
से मिला हूँ तेरा होने लगा हूँ, होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी अपने नहीं ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों मिलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों। छू तो लिया है ये जिस्म तूने, रूह भी छू ले, अल्फाज भीगे भीगे क्यों है मेरे। यूं चूर होके मजबूर होके कतरा कतरा कहे, एहसास भीगे भीगे क्यों है मेरे। तो बेखबर भीगे बदन, ओ बेसबर भीगे बदन, ले रहे रात भर अंगड़ाइयाँ। बेइंतहा बेइंतहा यूं प्यार कर बेइंतहा देखा करूं सारी उम्र तेरे निशान बेइंतहा। कैसे बताए तुझको चाहे यारा बताना बातें दिलों की देखो जो बाकी आगे तुझे समझा तू जाने ना तू जाने ना। निसा सा नी पदा मनी सा मना रे सा नि सा। मैंने तो धीरे से नींदों के धागे से बांधा है ख्वाब को तेरे। मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी, तू ढंग चाहतों का मैं जैसे कोई नादानी। मुझे खुद से जोड़ ले तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। सजदा सवेरा मेरा तन भर से, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। ओ सजदा सवेरा मेरा तन भर से, गजरा अंधेरा तेरी जलती लो। कतरा मिला जो तेरे दर पर से, ओ मौला मौला।
फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन कुन फायाकुन 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 साडा जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था वही था वही था वही था वही था वो जो मुझ में समाया वो जो तुझ में समाया बोला वही वही माया फायाकुन फायाकुन साडा कल्ला उल्लली उल्लज़ी थैंक यू Can't all day shoots mean Yes, Atul, you raise your hand. Atul Shukla. हाँ अनम्यूट नहीं हो रहा हेलो हेलो या निखिल am I audible now Yes, yes, Rajat, you're audible. थैंक यू सो मच हाँ तो मैं अब अपने बारे में बताता हूँ थोड़ा आप सबको मेरा नाम रजत है और जो भी अपना जो भी कोई काम कर रहा है मैं चाहता हूँ आप सब फ्री हो जाएं 2 मिनट मेरी बात सुने ऋतु मैम आ जाओ तो मैं अब अपने बारे में बताता हूँ मेरा नाम रजत है और मैं राजस्थान से हूँ और अच्छा मेरा नाम रजत है और मैंने डबल एमए कर रखी है डबल एमए इसलिए करी है क्योंकि मैं पहले में फेल हो गया था तो इसलिए मेरे को डबल एमए करनी पड़ी लेकिन कोई बात नहीं बनी थी लोग आपको पता ही है बोलते रहते हैं नहीं करनी चाहिए तो मैंने सबको मना किया मुझे एमए ही करनी है सबने मुझे कहा एमए ऐसे नहीं हो सकती लेकिन मैंने फिर भी कर ली सारे बोल रहे थे कि पहले बीए तो कर ले तो इस तरह से ऐसे हुआ लेकिन उसके बाद मैंने बैंक में फॉर्म वगैरह भरे काफी बैंकों के एग्जाम दिए किसी बैंक में हो नहीं रहा था कहीं पे भी जाता था वहां पे इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाता था तो वो कहते हैं कि आपको बैंक में जॉब चाहिए तो आपको रेलवे वाला फॉर्म नहीं चलेगा आपको बैंक वाला ही भरना पड़ेगा तो फिर मैंने रेलवे वाला फॉर्म भरा वहां पे बात कुछ नहीं बनी फिर फाइनली आपको पता ही है जब राह कहीं ना मिले तो फिर एमबीए कर लो तो मैं एमबीए करने आ गया जैसे कि आपने गाना मेरा सुन ही लिया तो मुंबई में मैं इसीलिए आया था ताकि मैं सिंगिंग कर सकूं और गीता मैम ने मेरा एडमिशन ले लिया बाय चांस
इन्होंने मुझे पहले ही कहा था सिंगिंग वगैरह करोगे तो यहाँ मत आना, और प्रोग्राम में देखो सबसे पहला परफॉर्मेंस ही मेरा है। तो मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता था, ये मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट के लिए बोला, हालांकि चाहता मैं कुछ नहीं। तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट में फर्क देखो, बहुत फर्क होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे मरीज लेटा होता है ना, ऐसा माहौल होता है, एक ही रूम में 20-20 बेड लगे होते हैं, सबको ज्यादातर खांसी होती है, और नर्स वहाँ की ऐसी होती है, आप देख लो, आप बीमार आदमी खांसी का भी पेशेंट होता है ना, उसको हार्ट अटैक आ जाए, ऐसी नर्स होती है, ऐसे चप्पल घिसटाते आएंगी पूरे हॉस्पिटल में, वहीं दूर से पता चल जाता है ये नर्स आ रही है। टैबलेट देने वाली वो इंजेक्शन ऐसा लेके आती है, मुंह ऐसा बन जाता है पेशेंट का जैसे बस क्या ही आ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लो बहुत फर्क होता है, नर्स को देख के मजा आ जाता है। नर्स आती है, पेशेंट वैसे ही खुश हो जाता है, कहता है वाह वाह वाह, लगा दो इधर, लगा दो फिर इंजेक्शन, लो, इतना ज्यादा खुश हो जाता है पेशेंट में। आप फर्क देखो कितना है, वहां पे एसी चल रहा होता है, यहाँ पे पंखा भी बंद होता है, उंगली से चलाना पड़ता है पंखा। उसके बाद आप रेलवे में देख लो, रेलवे में देख लो कितनी सारी फैसिलिटीज, प्राइवेट ट्रेन जैसे आपने महाराजा एक्सप्रेस देखी होगी, आपको 38,000 की प्लेट में तो खाना खाने को दिया जाता है। यहाँ पे आपको डिस्पोजल मिलेगा नहीं मिला पता नहीं, समोसा ऐसी हाथ में देते हैं, चटनी उस हाथ में होती है, आदमी समोसा इधर से ढूंढ के खा रहा होता है। ट्रेनों में भी आप फर्क देख लो, अब नॉर्मल जनरल डिब्बे होते हैं ना, वहां पे देख लो आदमी एक आता है पकौड़ी वाला, उसकी पकौड़ी कहने की स्पीड ट्रेन की स्पीड से बहुत मैच करती है। जैसे मान लो ट्रेन रुकी हुई तो एक डिब्बे एक सीट से पूछता है पकौड़ी 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 पकौड़ी, जैसे ट्रेन चलती जाती है पकौड़ी 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 पकौड़ी, ऐसे करता आगे निकल जाता है, फिर ट्रेन में डब्बे में चढ़ जाता है। एयरलाइंस में देख लो, एयरलाइंस में बड़ा फर्क होता है। आप किसी गवर्नमेंट एयरलाइन में चल जाओ, वहां की नर्सें ऐसे लगता है बस रिटायर होने वाली है, इतनी ज्यादा बड़ी उम्र की नर्स होती है, रिटायर होने वाली होती है। और एयर होस्टेस, हाँ एयर होस्टेस, हवाई जहाज में और कौन से होस्टेस होगी, तो उनकी भी ऐसा लगता है थोड़ा दिन पेंशन आने वाली है। वो बोलती भी मन से नहीं बोलती, उनका बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, सामने जाके बोलती है दरवाजे इधर दो इधर है, दो इधर है, भाई साहब उधर बैठे, उधर भी है एक। आपातकालीन स्थिति में हवाई जहाज को पानी में उतारा जा सकता है। आदमी सोच रहा था आप जैसी नर्सें हो तो आपातकालीन तो आएगी स्थिति। प्राइवेट में इतना मजा आ जाता है जब ऐसे टांग पे हाथ रख के बोलती है ना, ऐसे आपातकालीन स्थिति में हवाई जहाज को पानी में उतार दिया, बाद में सोचता है तेरा साथ ही उतरूंगा, इतना ज्यादा मजा आ जाता है। क्या तेरे को नहीं छोड़ना, वो कहती है आपके एक ही एयर बैग है, कोई नहीं एक में आ जाएंगे दोनों। इतना ज्यादा फर्क होता है। अब सरकारी, अब हर बच्चे को ना स्कूल तो प्राइवेट चाहिए, पैसा बहुत है, और गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, फर्क बहुत है इसमें, बस इतना से इसमें फर्क आता है। अब आप कॉलेज में आप यहाँ पे एडमिशन लिया आप सबके कैट के हिसाब से, मेरा तो ऐसे ही हो गया था। तो अब यहाँ पे अब आपको ना सबको एक प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आपको टीचर कहेंगे ना कैमरा ऑन करने के लिए या माइक ऑन करने के लिए, तो आप सबके पास एक कनेक्टिविटी इशू आएगा। वो जरूर आएगा, आपको पता है। आप कितनी अच्छा वाईफाई लगवा लो, आपका माइक काम नहीं करेगा जब आपको सवाल नहीं पता होगा, या फिर कई बार गूगल पे आपको आंसर नहीं मिलेगा, टीचर पूछ रहा है ना, और आपका कैमरा तो कभी ऑन होगा ही नहीं, कभी ऑन नहीं होगा। आप हमें ट्राई करके देखना, नहीं होगा ऑन। और वही अगर लेक्चर खत्म होती है, जो पर्सनल मीटिंग होती है ना, उसमें कैमरा माइक और भी पता नहीं सब कुछ ऑन हो जाता है, उसमें इतना ज्यादा फर्क आएगा। तो यहाँ पे टीचर से बच के आया ना, मैं कुछ टीचर के बारे में आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक पीछे से मैम है यहाँ पे साड़ी में, आप देख रहे होगे, आज इन्होंने नई ली है, कह रहे थे कि मेरे को कैमरे पे दिखा देना, नई ली है, शो ऑफ करना है। इनका नाम है ज्योति मैम है। इन्होंने मुझे कहा था मेरे बारे में कुछ बोलना मत, क्योंकि ये एग्जामिनेशन हेड है। तो डर तो मेरे को भी लगता है, तो इसलिए मैं अच्छा ही लिख के आया इनके बारे में। पहली बात ये, जब आप ऑफलाइन इधर आओ, ऑनलाइन में तो आपको ठीक है, ऑफलाइन में जब इधर आओगे तो ज्योति मैम आपको एक लाइन बोलेगी। कैमरा इशू आ रहा है? अच्छा हम ऑनलाइन है ना, हमारा भी आ रहा होगा फिर। अभी बताओ कैमरा इशू आ रहा है? हाँ कर लो टाइप। अच्छा सब, हाँ यस, अच्छा क्या कह रहे हैं? अच्छा चैट्स भी बहुत अच्छी है, अमेजिंग आ रही है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले कहा था आप आ जाओ टाइम से, कोई दूध ले रहा होगा, कोई पार्सल लेना, सब आ गया, आ रहा है ना कैमरा प्रॉपर? ठीक है, तो मैं ज्योति मैम के बारे में बात करता हूँ। हाँ नहीं बताया? तो ज्योति मैम जब आप क्लास में होगे ना, तो इनकी क्लास में ध्यान से मन लगा के पढ़ना, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाती है, इतना ही था। घबराने वाली बात नहीं थी इतनी कोई। बाकी आपको एक डायलॉग बोल सकती है, यू आर लुकिंग एट मी, आई एम लुकिंग एट यू। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा अगर लुक ना कर रहा हो तो वो कहाँ देखे? मैम कह रही यू आर लुकिंग एट मी, और बच्चा देख भी नहीं आता।
तो बच्चा कौन सा समझेगा कि कौन सा लुक करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब दूसरा, मैं फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ तो फाइनेंस के टीचर के बारे में बता पाऊंगा। सबसे अच्छे और मेरे फेवरेट है योगेश सर, क्योंकि इनकी स्माइल ही बहुत अच्छी है। अभी आपको दिख रहे होंगे, मैं बताऊँ कहाँ पर है। तो योगेश सर हाथ ऊपर कर दोगे, ये देखो जो आपने पीपीटी देखी थी ना, जो डैशिंग स्मार्ट थे, वो यही है। इनके साथ हमेशा बना के रखना, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपका एक प्रोजेक्ट आएगा 400 नंबर का। बस इतना ही कहना था मेरे को। उसके बाद हमारे डायरेक्टर सर राजेश सर, इनसे मैं बहुत कम पढ़ा हुआ हूँ, क्योंकि ऑनलाइन था तो सारे ही कम पढ़े हुए थे। ये एक्सेल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को तो कम ही आता है। और उसके बाद दिनेश सर, सबसे ज्यादा खास और अहम बात, दिनेश सर आपको कैमरा ऑन करवाएंगे, क्योंकि इनको देखना होता है कि बच्चा कर क्या रहा है। इनको माइक से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है वो तो चलो ठीक है, समझ, अच्छा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे को बोलना पड़ रहा है। लेकिन कैमरे से इनको बहुत मेजर इशू है, अटेंडेंस ही नहीं रहते। अगर कैमरा नहीं ऑन है तो ये रिमूव कर देते हैं। तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आप ज्वाइन करें लेक्चर, मन नहीं है तो हाथों हाथ लीव कर दें, इनके नजर में ना आए, क्योंकि नजर में आ गए तो फिर आप जब इधर आएंगे फिर आपका बेड़ा गर्क है। ठीक है, तो ये टीचर के बारे में कुछ बच गए हो तो मेरे को कि कम लोगों से पढ़ाऊं, कम टीचर से। विकास सर बहुत अच्छे हैं, बाकी सारे बहुत अच्छे हैं, विवेक सर बहुत ज्यादा अच्छा। एक्चुअली पढ़ाया सबने, रजत कम से पढ़ा। हाँ, ये भी सर की बात सही है, पढ़ाया सबने, मैं कम से पढ़ा, क्योंकि वही ऑनलाइन था और मेरे को म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट था। और अब आप कुछ बच्चों में से एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, चैट में नहीं, अब माइक ऑन होगा। और जो भी अगर कोई अपना स्टूडेंट, कोई भी अपना टैलेंट, कोई गाना, कोई डांस, कोई फेस उनका, कोई कॉमेडी, कोई शायरी, कुछ भी बताना चाहे तो बता सकता है अभी। और इसके 5 नंबर मिलेंगे इंटरनल में। इसके 5 नंबर मिलेंगे इंटरनल में। तो कोई भी अगर कुछ यहाँ पे खुद कुछ शेयर करना चाहता है, और बहुत जरूरी भी है, पता है क्यों? अगर आप पहले से यहाँ शेयर कर देते हो ना कुछ, तो पूरी क्लास देखती है आपको, फिर यहाँ पे आके आसानी होती है, आप पहले से फेमस होते हो। हाँ, मैं म्यूट कर दूं। हेलो, आप में से कोई स्टूडेंट कुछ यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता है, या कोई बात कहना चाहता हो अपनी, कोई किस्सा शेयर करना चाहता हो, गाना सुनाना चाहता हो, या कुछ भी? टैलेंटेड तो आप बहुत सब कुछ है, फॉर्म में पढ़ा था, एडमिशन फॉर्म में। आवाज तो आ रही है ना मेरी? अब देखा, सबके इशू आ गया ना नेटवर्क का, मैंने पहले ही बोला था। शर्म आ रही है क्या? अच्छा, हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बाजो। क्या बोल रहे हैं? कैंटीन वाला गाना कौन है? सर एक बार लिस्ट निकालना स्टूडेंट्स की। हाँ, किसी ने हैंड रेस किया है। निखिल, अनम्यूट करो आप। Hello everyone, am I audible to you? या वेरी मच। Yeah, thank you. Thank you for the giving me this opportunity. मैं एक पोएम सुनाना चाहूंगा जो मैंने कोविड चल रहा था तब लिखी थी। अभी भी चल रहा है, तभी आप ऑनलाइन हो। हेलो हेलो, या सुनाओ सुनाओ। am I perfectly audible or not? या यू आर परफेक्टली ऑडिबल। Hello. या यू आर परफेक्टली ऑडिबल। Okay, so let me start. The poem is titled as न जाने क्या सच है। किए किसी ने पाप और भुगत रहा है कोई, किए किसी ने पाप और भुगत रहा है कोई, मिली भगत है जिनकी यारो है सही सलामत वही। अनजान थी दुनिया लेकिन ये बतलाया नहीं,
अनजान थी दुनिया, लेकिन ये बतलाया नहीं, महामारी से मर रहे थे लोग, फिर भी महामारी घोषित किया नहीं। हर देश की सांस दूषित हो गई, हर देश की सांस दूषित हो गई, फिर जाके ये बतलाया कि नया नवेला दूल्हा राजा है, कोरोना अब आया। घर पर सब तैनात हो गए, सड़क सड़क पर तालाबंदी, घर पर सब तैनात हो गए, सड़क सड़क पर तालाबंदी, एक ही देश को छोड़ के यारो सारे बाजारों में आ गई मंदी। ये सोची समझी साजिश है या सच में कोई महामारी, ये सोची समझी साजिश है या सच में कोई महामारी, इसका भी पता लगाने की अब हो गई मुहिम जारी। रुको रुको मेरे भाई बहनों, उनको भी सलाम करना है, जो ऐसे समय में भी अपनी सेवा देश को दे रहा है। मैं डॉक्टर, पुलिस और उनके साथी सबका जिक्र करता हूँ, आप सभी से गुजारिश है, और मैं भी सलाम करता हूँ, और मैं भी सलाम करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच निखिल। कोई और है, कोई और जो कोई गाना सुनाना चाहता हो, कोई पोएट? योगेश सर की सर, ऑडियंस डिमांड करे तो आना पड़ेगा। सर कोई एक स्टूडेंट लिस्ट निकालना सर एक बार, जो ज्वाइन है। योगेश सर की शायरी? नहीं, मुझे योगेश सर की शायरी नहीं आती। हम्म। सर वो ज्वाइनिंग जो है, जो वो दिखाना है 145। हाँ। निशान नायक, निशान नायक, निशान नायक, माइक इशू होगा क्या? यस यस, माइक हाँ इशू। हाँ। निशान नायक, आपको एक डायलॉग बोलना है, ठीक है? कौन मैं सा? बोलता हूँ डायलॉग, तो आपको रिपीट करना है अपने स्टाइल में। कौन सा? ठीक है, डायलॉग ये है कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं कि जो ठर से खोला और फर से नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर नहीं, सकता। करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, तू 5 योगेश मार्क्स सर को बोल मिलेंगे, देता है ये। 5 मार्क्स मिलेंगे इंटरनल के। नहीं नहीं, तू ले ले 10 ले ले, मेरी तरफ से भी ले ले 5। नहीं, अब बोलना तो पड़ेगा। माइक माइक इशू तो नहीं है, तो पता चल गया। है, मेरे गले का इशू हो गया अभी। अच्छा, कोई भी और डायलॉग जो फेमस टीवी मूवीज का डायलॉग, कोई भी जो आपको पसंद हो। माइक इशू। अच्छा, कोई ये डायलॉग बोलना चाहेगा? सॉन्ग बोलेगा निशांत। एक है सर। अच्छा, कोई भी ये डायलॉग बोलना चाहेगा? किसी को याद है ये वाला डायलॉग कि मंगल का खून कोई लेमन सोडा नहीं जो ठर से खुला और फर से पी गए? कोई क्रिएटिव नहीं है क्या? 130 बच्चे हैं। अच्छा, लिस्ट लिस्ट निकालना सर, एक एक को पकड़ते। अतुल, बाई चांस आपका माइक ऑन हमें दिख गया? अतुल शुक्ला, शुक्ला ना? अतुल शुक्ला, एंड प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। इनका सबका माइक इशू आ रहा है क्या? माइक इशू। नहीं अतुल, माइक तो ऑन हुआ था, हमने देखा था। अच्छा अतुल, वैसे ही डायलॉग मत बोलो, एक बार वैसे ही आओ, एक बार अनम्यूट करो। अतुल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट डे तो क्या हुआ? फर्स्ट डे
इंटरेक्ट करो, फिर ऐसे पता है, फिर फेमस हो जाते हो पहले दिन ही। अच्छा, कोई भी आना चाहेगा क्या अनम्यूट करके? नहीं तो फिर हम आगे शुरू करते हैं। मांडे को बुलाओ। अच्छा, हर्षवर्धन। हेलो हर्षवर्धन, हेलो। हेलो हेलो, वेलकम। हर्षवर्धन, कहाँ से हो आप? भैया मैं मालेगांव से हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से? अच्छा। अब यस। इससे पहले क्या किया था एमबीए से पहले? एमबीए से पहले ग्रेजुएशन ही किया था। कौन सी स्ट्रीम में? हाँ, वो तो ग्रेजुएशन लिखा बीकॉम है। में, कॉमर्स बीकॉम। अच्छा, कॉमर्स बीकॉम से। अच्छा, क्या कोई इंटरेस्ट है क्या आपका? कुछ ऐसे शेयर तो नहीं करना चाहता हूँ भैया, मतलब कुछ डायलॉग नहीं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू बोलना चाहता हूँ आपको कि यही बात जो आपने अभी बताई ना कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट मैम वाली जो हेड मैम है, जो योगेश सर है, 400 मार्क्स मिलने वाले हैं। जैसे एडमिशन हुआ था भैया, सबसे पहले लिंक्डइन ऊपर नीचे कर दिया था कि कोई सीनियर से पता कर लूं कि कौन से चीज पे फोकस करना है, कौन सी चीज पे नहीं फोकस करना है। तो वो तो मुझे मिला नहीं, मुझसे कुछ कमी हो गई होंगी, हाँ, पर तो आज दो आपने टीचर। वो चीज बता दी। हाँ, तो 2 टीचर तो मैंने बता दिया, ज्योति मैम और योगेश सर। वही हाँ, फाइनेंस में होते हैं। हाँ वही फाइनेंस ही लेना है भैया, और आगे भी पता ही चल जाएगा। तो अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने सारी चीजें भी बताई, उसके लिए भी थैंक यू। और सारे स्टाफ्स को और सर्स को इंडक्शन प्रोग्राम जो सुबह से कंडक्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बस यही बताना था भैया, थैंक यू। और आपके इंटरेस्ट क्या है तो बताओ, इतने भागो मत। बड़ी मुश्किल से तो कोई आया है। इंटरेस्ट क्या है आपके? गिटार बजाना पसंद है। गिटार वैसे है भी आपके फाइनेंस पास? मेरे पास तो नहीं है भैया, बट फ्रेंड्स की लेके और क्लास किया था। तो अभी अच्छा। एजुकेशन की वजह से घर वालों ने तो लेके नहीं दी। तो फिर सिंगिंग भी करते होगे साथ साथ? नहीं नहीं भैया, आपके इतना अच्छा गला कहाँ हमारा। नहीं, गला तो सबका सेम है, आवाज अलग है। वही वही समझ लीजिए। आप देखना, आपके एक सीनियर है मिस्टर निशांत मांडे, उनका तो गला भी नहीं है। हाँ, उनके भाई इशू आ गए। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आगे थैंक यू, बढ़ाते हैं। थैंक यू। अच्छा, निशांत। अच्छा, निशांत मांडे, सॉरी सॉरी। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई आना चाहेगा, इंटरेक्ट करना चाहेगा? अच्छा, हाँ। केत, नाम मुश्किल है आपका, तो मैं जो भी है, आइए। कीत। कीत सुनाओ कोई गीत। कीत विक्रू, Hello आप कौन everybody. लग रहे हो? हाँ। Am I हेलो। audible? या, वेरी मच। Yeah, sir. So my literally मेरा थोड़ा नाम अजीब है, लेकिन थोड़ा 2-3 टाइम में आदत हो जाएगा. So first of all, I would like to introduce myself. My name is Keith De Cruz. I am from Vasai, and I think in that group there is one person there who knows me. क्या समझ में नहीं आ रहा, ये फाइनेंशियल डेटा लग रहा है कोई। नहीं फाइनेंशियल डेटा नहीं है. हाँ? मीन्स वो ग्रुप में से एक जन है जो एक मैडम मेरे को जानती है. आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा माइक ना। हेलो, अभी आ रहा है आवाज? कोई मैडम आपको जानती है? यस कौन सी मैडम जानती है, बताओ, हम भी देखें। यस 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 यस. गीता मैम सबको ही जानती है। मेरा एडमिशन भी नहीं कराया था, 10 रुपए का डिस्काउंट भी दिया था। 10 रुपए मेरे को तो उतना भी नहीं मिला था. हाँ, खुल। हाँ, सच। हाँ, और उसके बाद क्या कह रहे हो आगे? एक मैम आपको जानती है, उसके बाद? उसके बाद मतलब अभी देखा जाए तो मैंने भी कभी ऐसा थिंक नहीं किया था कि इतने अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मेरे को ऐसा एडमिशन मिलेगा. मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. जो भी हुआ सब. अच्छा, एक बात बताओ, जब अभी तक एडमिशन ले रहे थे तो आपने पूछा था किसी से ये कॉलेज अच्छा है कि नहीं, या 2-4 कॉलेज और ट्राई करे होंगे? अरे देखा जाए ना, मैं बॉम्बे के हर एक अच्छे कॉलेज में विजिट करके आया मैं. हर एक अच्छे को? तो फिर ये अच्छे में काउंट किया कि नहीं किया? अरे इसको क्या अच्छे में काउंट करूंगा ना. अच्छा, सारे सुन रहे हैं इसलिए ना, कोई पर्सनली बता देना। हाँ, सारे सुन रहे हैं तो इसलिए अच्छे में है क्या? नहीं मीन्स में देखा जाता रह जाके पहले बहुत सारे मीन्स अपना ये दुर्गा देवी श्रॉफ, फिर अपना ये अछराव कॉलेज, फिर शशमीरा कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस विजिट किया. तो उसमें से मीन्स ये वाला कॉलेज भी विजिट किया था मैंने. तो मेरे को ये वाला कॉलेज मीन्स थोड़ा मीन्स मैनेजमेंट एंड टीचिंग स्टाफ एंड उन लोग का थोड़ा जो जैसे इंटरेक्ट करते हैं वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा. मीन्स एंड मैडम का भी इंटरेक्शन मेरे को अच्छा लगा. अच्छा, ठीक है, भावनाओं में बह गए काफी आप, पर ठीक है, मजा आया आपसे बात करके। मजा आया. और कोई?
आना चाहेगा, बात करना चाहेगा? किसी को अपना दुख दर्द बताना हो तो वो भी बता सकता है। ईशू सैनी। Hello, am I audible? क्या माइक है आपका, मजा आ गया। Hello, am I audible? हाँ, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, यकीन मानो। Okay. I want to say some beautiful lines about education. वाह। So can I? हाँ हाँ बिल्कुल, रोक कौन रहा है, आप तो चाहते हैं बोले। Education is the passport to the future. For tomorrow belongs to those who prepare it for today. And the एग्जाम में आएगा। beautiful things about learning is that no one can take it from you. An investment is knowledge, pays the best interest if the education's real education consists of trusting goodness that no one can take away from you. It's have the power to take away the grab to the world. Thank you. वाह। अच्छा, अभी साथ साथ लिख भी रहे थे क्या अभी? बड़े आराम आराम से बोल रहे थे, मेरे को लगा। हेलो ईशू। Yes. हाँ, yes sir. बहुत अच्छी लाइंस थी, मैं तो खुद सोच रहा हूँ सिंगिंग छोड़ के अब पढ़ाई कर लूँ। अच्छा। मजा आ गया सुन के। और आप कहाँ से हो? Actually, I am from Jogeshwari. जोगेश्वरी। वाह, बहुत अच्छी जगह, मैं गया नहीं कभी। Please visit करना कभी टाइम मिले तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये बस पोइट्री वगैरह आपने खुद लिखी है क्या ये? एक दो लाइंस तो खुद से लिखी है, बाकी मैंने अभी 2 मिनट में सिर्फ गूगल किया है। दो ही तो लाइन थी टोटल। वैसे लिखेंगे तो 3 लाइन हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मजा आया, बहुत अच्छी लाइन ली। और कोई? एक किसी और ने माइक तो ऑन किया था, फिर इशू ने कर दिया तो उसने अनम्यूट कर दिया, कौन था वो? दीपिक्षा, दीपिशा। निशांत मांडे सब देख रहा है कौन माइक ऑन कर रहा है कौन नहीं। वाह, पूरा ध्यान टोटल वहां पे है। हाँ, अच्छा उसके गांव से है। नाइस मांडे, लगे रहो। अच्छा ठीक है, हो गया, और किसी को नहीं आना? नेक्स्ट आगे शुरू करें। Yes. यस कौन बोल रहा है? अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, आगे शुरू करते हैं। सिर्फ आप 1 मिनट का टाइम दो हमें। म्यूजिक ना म्यूट जो करते हैं।
हेलो हेलो Yes. एक सेकंड सर। आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक आ रहा है चिन्मय। हेलो, यस दीपिशा, एक सेकंड। Just wait for 2 minutes. We'll start. Deepesha, we are just setting that setup. Just wait for 2 minutes. Hello, hello. Yeah, it is audible. अभी वो भी चाहे वहां से म्यूजिक बजाओ।
हेलो इनपुट नहीं ले रहा है ना, आपने वहां का म्यूट हेलो करके रखे हो। नहीं लेगा, दोनों लेगा। हेलो हेलो Yes, we can hear you. हेलो चलो जाओ दे, म्यूजिक छोड़ो। कर लो। कुछ अलग प्रॉब्लम है नहीं तो हेलो म्यूट क्लोज कर दो सॉरी हाँ भाई आ रहा है ना। या आ रहा है। ओके ठीक स्क्रीन प्रेजेंट कर दो हाँ आता पीपीटी वीडियो भी हो गया शेयर में करो। कैमरा एक सेकंड फुल स्क्रीन एक मिनट। वीडियो कैमरा वीडियो वीडियो साउंड से बोलना। चलो स्टार्ट करते हैं। सर वीडियो वीडियो यहाँ की वीडियो वीडियो इधर नहीं नहीं पीपीटी कैसे चेंज होगा? नहीं ऑन तो कर दो ठीक है म्यूजिक पीपीटी 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 नमस्कार देवियों सज्जनों
स्वागत करता हूं आपका खेला में, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। आज इस खेला में हमारे सामने हॉट सीट पर, एक सेकंड, हॉट सीट पर विराजमान होने जा रहे हैं डॉक्टर राजेश चौकसी और उनके साथ मिस्टर सोहम एंड सर दिनेश जी एक्सपर्ट के रूप में उनका साथ देंगे। जोरदार तालियां हो जाए, बहुत ज्यादा। आप बाहर घूम रहे हैं, आपको एक्सपर्ट के लिए बुलाया, मास्क उतार के बैठे, फोटो नहीं आएगी, ठीक? तो पहले बताइए आप कैसे हैं? मजे में है तो 1 करोड़ दो ना। मजे में हूँ। अच्छा, करोड़पति नहीं हूँ। अच्छा, तो ये करोड़पति नहीं है, सिर्फ पति है, ठीक? तो सर आपको पहले खेल के रूल्स बता देता हूं। इस खेल में अब जब तक सवाल नहीं पूछेंगे कोई जवाब नहीं देगा, पहला रूल। दूसरा, आप खेला बीच में छोड़ के नहीं जा सकते, कोई भी फोन मीटिंग आए, नेटवर्क इशू, कुछ नहीं। तीसरा, आपको 4 लाइफ लाइन दी जाएगी, ऑडियंस पोल, साथी फोन उठाना, 50-50 और एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट में 2 एक्सपर्ट है हमारे पास, एक बहुत ही पढ़े लिखे हैं, एक सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं। पढ़े लिखे हैं मिस्टर दिनेश सर, ये कैमरा ऑन करवाते हैं, वही इनका भी हमने ऑन करवाया आज। और दूसरे एक पोस्ट है इनकी, क्या नाम, प्रेसिडेंट है इस कॉलेज के, हंसता हुआ इनका चेहरा है, कुछ भी नहीं कहेंगे आपको कभी भी, और मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक? तो पहला सवाल सर आपसे पूछते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन लगा दीजिए, कंप्यूटर की स्क्रीन लगाइए कंप्यूटर जी। म्यूजिक कौन बजाएगा? आप। चलिए, पहला सवाल, छोटी एबीसीडी पढ़ाई वाला सवाल पूछेंगे। छोटी एबीसीडी, इधर देखिए, बड़ी एबीसीडी से, छोटी एबीसीडी बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 20 साल, या फिर ऑप्शन डी 9 महीने। बताइए, एक सेकंड। एग्जामिनेशन हेड 1.5 मार्क्स। सवाल है पूरे 10,000 रुपए का। बताइए। यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकते, पर पहले ही सवाल में करेंगे ऐसा, क्या सोचेंगे ये सब? 10,000 रुपए। हाँ, 10,000 रुपए का है, लेकिन बताइए, जवाब दीजिए। चीटिंग नहीं करनी, ना ही गूगल खोलना, नहीं तो आपके कंप्यूटर का नंबर नोट कर लेंगे। लो बताइए। छोटी एबीसीडी इतना सोचने वाली बात तो नहीं। बड़ी एबीसीडी से कितनी छोटी? बताइए। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। आप उनके घर देखें। नहीं। अच्छा, ऑप्शन बी तो बहुत मुश्किल है, सी तो इमेजिनिंग के बाहर का है कि इतना गैप कैसे हो सकता है। अक्सर तो बच्चों में इतना नहीं होता है, ये जनरेशन गैप होता है। मैं लॉक करना चाहूंगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को लॉक करना चाहेंगे? 9 महीने। 9 महीने। हाँ तो आती। कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। आप कंप्यूटर, इस बार नहीं, अभी हम ही। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए, आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, 10,000। गलत जवाब। एक सेकंड रुक जाइए, इतनी जल्दी मार्क मत कर। 5,000 वाली ताली बजाई, क्यों? 10,000 वाली ताली। अब आप 10,000 जीत गए, बताइए क्या करेंगे? पेट्रोल भरवाएंगे? 10,000 रुपए अभी कैंटीन वाले का बिल पे करूंगा। कैंटीन वाले से उधारी, ठीक है, काफी जरूरतमंद लग रहे हैं आप। दूसरा सवाल, म्यूजिक बता दीजिए। म्यूजिक 7 सेकंड से शुरू होता है, ठीक। अब आपको एक पहेली पूरी करनी है। पहेली नहीं, सॉरी, जो भी कथन है, हाँ, कि भैंस पूंछ उठाएगी तो डैश ही करेगी। ऑप्शन ए वड़ा पाव, ऑप्शन बी मेंदू वड़ा, ऑप्शन सी सरसों का साग, ये हम नॉर्थ से इसलिए ऐड किया, और ऑप्शन डी कुछ तो करेगी पर स्मेल बहुत आएगी। बताइए। एग्जामिनेशन खुश हो रहा है। बताइए।
थोड़ा मुश्किल है। आसान तो हमसे भी नहीं पूछते, गूगल देखना पड़ता है। मैं फोन फ्रेंड करना चाहूंगा फोन ऑफ फ्रेंड किसको फोन करना चाहिए? एग्जामिनेशन हेड को। ज्योति मैडम को फोन करना चाहिए। कंप्यूटर जी, ज्योति हमको फोन मिलाइए, मिलाइए, वीडियो कॉल मिलाइएगा। मिला दिया, हो गई बात। चलो पूछ लीजिए अपने दोस्त से। मैं अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन नहीं बोल रहा हूँ, मैं राजेश चौक से बोल रहा हूँ। मेरे पास एक सवाल है, आपके पास है 10 सेकेंड, 30 सेकेंड, सॉरी टाइम बढ़ा दिया, ऑनलाइन है। भैंस पूछ उठाएगी तो डैश ही करेगी। ऑप्शन है ए वड़ा पाव, बी मेंदू वड़ा, सी सरसों का साग। सरसों का साग अलग होता है, कलर पे मत जाना। कुछ तो करेगी पर स्मेल बहुत आएगी। डी। बहुत समझ के बताइएगा, अगर गलत हो गया तो याद रखिएगा 1.5 नंबर हम काटेंगे। आसान तो हमसे भी नहीं पूछा जाता। पूछ उठाएगी तो वड़ा पाव तो पक्का नहीं निकालेगी, तो वड़ा भी नहीं निकालेगी। हाँ, वड़ा पाव तो अपना माधव निकालता है। मेंदू वड़ा भी माधव निकालता है और सरसों का साग तो नॉर्थ में ही मिलता है। तो मुझे तो यही लग रहा है ऑप्शन डी सही है, कुछ तो करेगी पर स्मेल बहुत आएगी। तो आपके फ्रेंड कट हो गया फोन टू, ठीक। आपके फ्रेंड ने बताया ऑप्शन डी, क्या आप फ्रेंड के साथ जाना चाहेंगे? मुझे विश्वास तो कम है, बट फिर भी अब ऑप्शन ज्यादा नहीं होने की वजह से, और मेरे टीचर ने बताया था कि अगर सारे ही सवाल ABCD वाले हो तो सभी में डी लगाते चलो, कुछ तो मार्क मिल ही जाएंगे। ऐसा हमने भी किया था पिछले मिड टर्म में, 0 आया। या तो आपका टीचर गलत था या फिर अभी आप गलत थे, क्योंकि वो मुझे भी मेरे टीचर ने पहले ही बताया था। तो आप फेल हो गए थे। इसलिए मैंने सारे जवाब बी रखा था। तो इनके हिसाब से कि टीचर की बात पे कोई विश्वास ना करे, वो थोड़ी सी सैलरी के लिए कुछ भी बता सकता है, ठीक है, पर यहाँ की थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक। तो आपके फ्रेंड का नॉर्थ में मिलता है सरसों, तो वहां की भैंस का सरसों का साग करती। भैंस तो भैंस है, एक ही चीज करेगी। वहां की भैंस क्या बदनामी क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी कह रहे हैं स्मेल आ रही है, ओके, तो डी लॉक कर दिया है, बता रहे हैं 1 लाख रुपए, जोरदार तालियां। आपका कैंटीन का बिल भी चुकता हो जाएगा और पेट्रोल भी आ जाएगा, और म्यूजिक बीच में नहीं बजेगा अगली बार, ध्यान रखिएगा, और कुछ पैसे आपके बचत भी हो जाएंगे थोड़े बहुत। तो आपका तीसरा सवाल आप पूछते हैं। हाँ भाई साहब, म्यूजिक। तीसरा सवाल, सिंघम रिटर्न क्यों हुआ? ऑप्शन ए, सिंघम की गन देव ले गया था। ऑप्शन बी, आगे यू टर्न का बोर्ड लगा हुआ था। ऑप्शन सी, गर्मी बहुत थी, उमस का मौसम, समुद्र है। या फिर ऑप्शन डी, सिंघम अपना चार्जर घर पर भूल गया था। बताइए बताइए। इसका पहले प्राइस बताइए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। 10 लाख रुपए का सवाल, मेरी आवाज बहुत बुलंद है ऐसी। 10 लाख। बिल्कुल। सिंघम रिटर्न क्यों हुआ था? लाइफलाइन का यूज करना चाहोगे? कौन सी लाइफलाइन यूज करनी है आप रखिए। अब मैं ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, हमारा बजट कम है, इसलिए एक ही माइक है, ये लो, आप ही रख लो। बताइए कौन सी लाइफलाइन। एक आप यूज कर चुके हैं, साथी फोन उठाना, साथी ने उठाया, जवाब जीत भी गए, 50,000 रुपए दे देना। अब बताइए कौन सी लाइफलाइन यूज करनी? कौन कौन सी बची है? 50-50 ऑडियंस पोल लेना था, क्योंकि और एक और वो बाद में बताना। फिलहाल मैं ऑडियंस पोल के लिए जाना चाहूंगा। ऑडियंस पोल कंप्यूटर जी, 3 तो आपने शेयर करके चैट बॉक्स दिखाइए। चलिए ऑडियंस, अब आपकी बारी है, आपको इस सवाल का जवाब देना। बताइए सिंघम रिटर्न क्यों हुआ था? 4 ऑप्शन आपने पढ़ लिए, बताइए। क्रिएट पोल, एडवांस नहीं हुए थे। ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन वालों के लिए।
निशान नायक ABCD भाव डी 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 एक ने लिखा ई लेफ्ट को डी चार्जर भूल गया था डी। चलिए बहुत हो गया। आपकी ऑडियंस ने 90% ने जवाब दिया डी। निशान नायक और मांडे ने दिया ABCD और निखिल लांजेवार भी ABCD बोल रहे हैं। ने दिया ABCD, इसलिए बनाया था इसको प्रेसिडेंट के नीचे लिखो। ये गलत था जवाब, ज्यादातर डी ही है। बताइए क्या एक जने ने दिया है रोहित शेट्टी की कार में उड़ाने के लिए चुटकुला फ्लॉप कर दिया। ठीक, बताइए। ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस का पोल ज्यादा मायने रखता है मुझे। सर आप PPT चालू कर दो और सवाल देखना चाहूंगा मैं एक बार फिर से। अब ऑडियंस से रिस्पांस तो मैं पूछ नहीं सकता हूं, बट क्योंकि ऑडियंस मोस्टली ऑनलाइन क्लासेस करी हुई है तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है। बट ठीक है, क्योंकि ऑडियंस तो ऑडियंस ही है और ऑडियंस हमेशा सच बोलती है, इसलिए। और मेरी फिलॉसफी भी जा रही है डी तो डी, लास्ट तक डी तो मैं ऑप्शन प्लीज लॉक कीजिए डी। डी लॉक करने से पहले आपकी एक बात पे संदेह है मुझे। आपने कहा कि ऑडियंस क्या आप सुनते हैं। यस, थोड़े दिन पहले याद है एक मीटिंग हुई थी उसमें मैंने कहा था और सबने भी कि लंच ब्रेक को 15 मिनट छोटा मत कीजिए। सबने कहा था, ऑडियंस ने कहा था, आपने फिर भी नहीं माना। अभी क्यों मान रहे हैं बताइए। होती में भी रहती है, बात के पक्के रहना चाहिए, समझे। लंच ब्रेक 15 मिनट कम करने के पीछे जो ऑडियंस का पोल था उसमें थोड़ा सा डाउट था मुझे। मैं 6 रोटी खाता था, 4 ही खाता था। जिम्मेदारी कौन लेगा। लोग लंच ब्रेक छोड़ के और कुछ इधर उधर काम करते रहते थे। आप ऑफिस में रहते हैं, कैंटीन में तो आपको कभी नहीं देखा। जवाब दीजिए, हंस क्या है। ये तो कॉमेडी शो नहीं चल रहा जिसमें आप हंस रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो एक्सपर्ट टीम थी डिसिप्लिन कमेटी के, हमारे प्रोफेसर संदीप कुतरकर सर हेड है, उन्होंने कुछ नोटिस किया था जिसको हम अभी पब्लिकली डिक्लेयर नहीं कर सकते। आधी से ज्यादा तो ऑनलाइन। चलिए ठीक है, क्या बढ़ाना, जीत तो मेरी हो ही गई। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। कंप्यूटर जी मेरी तरफ मत देखिए, ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिए। सिंगर इसलिए घर गया था, चार्जर घर पे भूल गया। बिल्कुल सही जवाब, 10 लाख। थैंक यू। कंप्यूटर जी की तारीफ है। चलिए चौथा सवाल, पूरे 1 करोड़ रुपए। डर लग रहा है। फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल जी को कौन पसंद है। ऑप्शन ए कोमल भाभी, ऑप्शन बी अंजलि भाभी, ये तो मेरे को पसंद, ऑप्शन सी कोई और भाभी है, या फिर ऑप्शन डी बबीता जी। बताइए, टीवी देखते हैं? नहीं। जिसका कैंटीन का 10,000 का बिल हो उसके घर में टीवी कहाँ हो। सही बात। कोइंसिडेंटली मैं सही में टीवी नहीं देखता, और कोइंसिडेंटली बाजू वाले का टीवी है। ठीक, बताइए। क्वेश्चन में डाउट है सर, आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। एग्जामिनेशन को पूछो। ये जो तारक मेहता है, इसका प्रॉब्लम में एक इशू है सर। तारक मेहता इशू है। तारक मेहता के प्रॉब्लम जो न्यूमेरिकल 4 नंबर है क्वेश्चन, उसमें प्रॉब्लम है थोड़ा। क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है?
मैंने कई चश्मे वाले देखे भाई साहब, ये उल्टा वाला का अभी तक नहीं देखा। आपने कभी सोते हुए इंसान को देखा है? नहीं नहीं। आप कभी सोइए और सेल्फी लीजिएगा, चश्मा उल्टा ही आता है। हाँ तो फिर सही होगा, सही होगा। इसको कहते हैं लाइव कॉमेडी। ये स्क्रिप्टेड नहीं था, बाकी ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ, ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ये सब लाइव चल रहा है। आप शेयर कीजिए मुझे। हाँ तो बताइए, उल्टा हो गया जवाब आपका। हाँ बताइए, सवाल तो सही है। फेमस टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल जी को कौन पसंद है? Read the question carefully. जी को कौन कौन पसंद है? कौन कौन है? ऑप्शन में तो एक ही दिए। जी को कौन पसंद है, कौन को नहीं। आप जी को मैंने टाइप करते समय एडिट किया, देखा। मैं अपनी लास्ट थर्ड लाइफ लाइन यूज करना चाहूंगा। कौन सी बात? कौन सी बची है? 50-50 बची है। 50। एक्सपर्ट की राय बची। आपके दो एक्सपर्ट हैं, एक तो एक्सपर्ट फोन अ फ्रेंड था। इस हिसाब से बने आ रहा है। मैं एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगा, ऑनियन नहीं। तो इन्होंने कहा एक्सपर्ट का ऑनियन, सॉरी ओपिनियन लेना चाहेंगे। आपके पास कोई ओपिनियन है? कौन सा एक्सपर्ट, पहले तो बताइए। कहते हैं कि दोस्त समझदार हो तो अच्छा, बेवकूफ हो तो उसका तुक्का बड़ा अच्छा लगता है। बताइए। मैं कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज थोड़ा। 1 करोड़ का टाइम आपका ही कॉलेज है। मेरा क्या है? दोनों से पूछ सकते हैं, दोनों से पूछ सकते हैं, पर आपको 1 करोड़ में से थोड़े रुपए काटेंगे। रहने दो। एक से ही पूछते हैं, तो सोहम से पूछते हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट माइक मांग रहे हैं, बताइए सवाल का जवाब। जैसे हमेशा हम लोग को जैसे हिंट दी जाती है, कोई भी सब्जेक्ट के बारे में हो, पेपर पैटर्न के बारे में हो, वही बोल रहा हूँ। मतलब जो हमेशा एग्जामिनेशन के लिए हमें हिंट्स दिए जाती है, कौन से सवाल आएंगे, क्या होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं मिलेगा, इसी तरह से मैं भी आंसर यही हिंट में दूंगा, डायरेक्टली मैं आंसर नहीं दूंगा। सर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, नीचे सिर्फ कोई आपको रिलेशन वहां पे जोड़ना है, बस उसपे से ही आपको समझ जाएगा। ऑपरेशंस के है तो लिंक लगा दो अभी सर, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसमें ही। लगता है एक्सपर्ट के घर में भी टीवी नहीं है। कोई बात नहीं। अब इन्होंने एक लाइन बोली थी कि जैसे एग्जाम में हिंट दिया जाता है कौन सा सवाल आएगा कौन सा नहीं दिया जाता। अच्छा नहीं दिया जाता, बच गए। अभी जवाब रेडी था। तो आपका एक्सपर्ट तो निकला। बताइए दूसरा एक्सपर्ट, 50 रुपए कटेंगे। गुड आंसर। मेरे एक्सपर्ट ने मुझे आंसर दे दिया है और लिंक एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी यहाँ पे। जी, जेठालाल जी के पीछे जो है वो जिस आंसर के पीछे है वही आंसर है। इनके पीछे तो खुद कुछ नहीं। नहीं, जेठालाल जी के पीछे जी है और ऑप्शन डी के पीछे भी जी है। जी हाँ, बाकी सब भाभी है और एक ही जी है। ठीक, तो आप क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन डी लॉक कीजिए, ऑप्शन डी लॉक कीजिए। कंप्यूटर जी क्या लॉक करेंगे आप, छोड़िए। ऑप्शन डी लॉक कर दीजिए बबीता जी। हाँ बबीता जी, आप जीत चुके 1 करोड़ रुपए। आखिरी सवाल पूरे 5 करोड़ रुपए के लिए अब आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पे आने जा रहा है, म्यूजिक के साथ। चलिए, मुश्किल सवाल देंगे, 5 करोड़ का है, काफी मुश्किल और पुराना। 1900 आरबीआई कब हुआ था? अच्छा, तो फूल और कांटे मूवी में, फूल और कांटे, हंसिए मत, फूल और कांटे मूवी में पत्तियां क्यों नहीं थी? ऑप्शन ए
पत्तियां बकरी खा गई थी। ऑप्शन बी, पत्तियां कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। ऑप्शन सी, पत्तियों का नेटवर्क इशू हो गया था, माइक इशू, नेटवर्क इशू। या फिर ऑप्शन डी, पत्तियां तो थी पर उनका क्रेडिट नहीं मिला। बताइए, सोच समझ के बताइएगा कि 5 करोड़ है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और एक है। 5 करोड़ और क्या लेके जाएगा? कितने कमाने? मैं अपना लास्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। लास्ट लाइफलाइन 50-50। जो भी है। गेम खेलने लाइफलाइन नहीं पता, और हमें कहते हैं सवाल सॉल्व करने से पहले स्टेप याद रखो। वाह, ठीक है, तो 2 गलत, जो जवाब है वो मैं हटा देता हूं। दूसरा और पहला, यानी ए और बी हट चुके हैं, आपके पास बचे हैं सी और डी। सी है कि पत्तियों का नेटवर्क इशू हो गया था, और डी, पत्तियां तो थी पर उनका क्रेडिट नहीं मिला। सोच लीजिए, माइक मत लीजिए, सोचिए आराम से, ठंडे दिमाग से। वाटर? फूल और अभी तक घबराइए मत। मेरी मम्मी ने कहा था कि जब भी स्टेज पे जाओ तो समझो कि ऑडियंस मूर्ख है, तो आपको डर नहीं लगेगा। घबराइए मत। ये तो सुबह से हंस रहे हैं, इनका तो नाम ले लो तो भी हंसेंगे। रितु मैम देखो, ज्योति मैम देखो, वो तो नाम पे हंस रहे हैं, इनको चुटकुला समझ में नहीं आ रहा। घबराइए मत, रिलैक्स हो जाइए, डायरेक्टर हो। चलिए, एक कंफ्यूजन था। तो आपको तीसरे सवाल में भी नहीं, हाँ, तीसरे पे रिपीट होता है, अभी जल्दी आ गया ऑनलाइन में। फूल और कांटे मूवी, कांटे कांटे फूल और कांटे मूवी रिलीज कब हुई थी? जिस साल आरबीएस भी आए थे तभी आई थी। आरबीएस भी आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, मेरा तो ऑनलाइन पेपर है। फूल और कांटे मूवी बहुत पुरानी है। उस जमाने में नेटवर्क ही नहीं हुआ करता था, तो इशू नहीं रह सकता। हाँ, नहीं, ए और बी हटा, ए और बी और सी भी नेटवर्क है ना, तो अपना थंब रूल डी पे लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर जी, आप भी डी को लॉक कर दिया जाए। पत्तियां तो थी पर उनका क्रेडिट नहीं मिला। ये बिल्कुल सही जवाब है, आप जीत चुके पूरे 5 करोड़ रुपए। तालियां, तालियां, म्यूजिक, म्यूजिक। एक सेकंड, ओहो, समय समाप्ति की घोषणा। समय समाप्त हो गया। जो 5 करोड़ हैं आपको अगले एपिसोड में दिए जाएंगे, आपका आधार कार्ड चेक करके। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऑडियंस में जो भी रिस्पॉन्स आया हम देख नहीं पाए, ये हमारा शो था। अब एक सेल्फी लेंगे, विवो सेल्फी, टीवी की तरह करेंगे बिल्कुल। कल आएगा सोनी टीवी पे 9 बजे। पैसे निकल गए जेब से। चलिए, सेल्फी। एग्जामिनेशन आ गया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अपने घर जाने भेजना, घर नहीं भेजना, कुछ बोलेंगे फिर तो मैं बोलेंगे जो आश्रय की बहुत ज्यादा उनके नाम पे। लीजिए, माइक ले लीजिए। एक कहां सच में रजत एक गाना हो जाए बढ़िया से, जो भी, हाँ जो भी अनाउंस कर दो, उसको पहले गाना करें।
Ma'am, the mic is muted. Hello. Hello. Am I audible? Yes. Yes, Rajat. Hello. मेरी आ रही है? स्टार्ट करो। La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू सो मच। Wow, Rajat, that was really amazing performance. Thank you for putting the stage on fire. Can we hear it for Rajat? Thank you to all the students and faculty for your active participation. Studenthood is the most enjoyable of any person's life, provided he has the right perspective. For being student means having been given the opportunity to explore knowledge. Real enjoyment is not the temporary enjoyments of the fresh. They are the ones that are eternal. Enjoy every day, every moment. You will find best of your memories at SRBS. With this, we come to the end of the first day of the induction program. But as it is rightly said, with endings come new beginnings. We start a new day tomorrow at 9 a.m. with more fun, more excitement, and lots of knowledge sharing and gaining.
Thank you all for joining. See you again